Hello, good morning, student. Today we will solve some numericals problem from exercise chapter number 1. Here the question number 1.1 taking from NCERT book or NCERT textbook. Here first numerical is, what is the force between two small charge sphere having charge 2 into 10 to the power minus 7 and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed at 30 centimeter apart. This is the very simple question. Here given two charges, q1 is this and q2 is this, okay, and repulsive force of the magnitude 6 into 10 to the power minus 3 Newton. Here this value is not given in this question, so please avoid this value. And now q1 and q2 are the two charges, and another one quantity is given here. Distance between them is 30 centimeter, which is convert into the meter 0.3 meter. We know that the electrostatic force formula F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square. The value, upper values, please put into this formula and we will get 6 into 10 to the minus 3 Newton force. Hence, because of these two charges are same, positive and positive, so the force will be repulsive. Because of, I have already explained to you, the similar charge always having repulsive nature of electrostatic force and opposite charge always attractive nature of the electrostatic force. Next question number 2, 1.2. In this question given is electrostatic force of the small sphere is small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to the another small sphere of charge 0.8 microcoulomb in air is 0.2 Newton. In this question the two charges are given which are not similar. One is positive and another one is negative. The value of force is here 0.2 Newton. And in this question we will find out what is the distance between the two spheres and what is the force on the second sphere due to the first. So for this question, first of all, always you think about the question, first write the values. The value of force is this and the value of charge are this q1 and this is q2. Microcoulomb converted into the coulomb. When we convert into the coulomb, that is here multiplication by 10 to the power minus 6, because of 1 microcoulomb is equal to the 10 to the power minus 6 coulomb. The electrostatic formula again 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square. Epsilon naught is the permittivity of the free space. The value of this 1 upon 4 pi epsilon naught is equal to 9 into 10 to the power 9 Newton meter per coulomb square. Now here calculate the distance. R square is equal to formula convert into 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon f. Taken the values here, put into this formula. Now the calculate for these values, the value will be 144 into 10 to the minus 4. Again the root of this value and 12 into 10 to the power minus 2, which is get here 0.12 मीटर. तो जो डिस्टेंस होगी हमारी, जो दो हमारे पास ये टू चार्जेस हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा 0.12 मीटर होगा. किसके लिए? 0.2 न्यूटन फोर्स को जनरेट करने के लिए. फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि दोनों नेचर क्या है? अपोजिट चार्जेस हैं. ठीक है, बोथ स्पेयर्स अट्रैक्ट टू ईच अदर एट द सेम फोर्स. एक्चुअली जो फोर्स होता है हमारा यहाँ पर, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चार्ज एक चार्ज से दूसरे चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो सेम ही होगा. ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो चार्जेस का क्या है? मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और उसके चार्जेस का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है. नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.3 की. चेक दैट रेशियो QE square upon GMEMP dimensionless. Look at the table of the physical constant and determine the values of the ratio. Does the ratio signify? देखिए यहाँ पर जो रेशो है हमारा KE स्क्वायर अपॉन GMPME, ये तो हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो जाएगा और यूनिट वाइज हमारी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. सेकंड वन में अगर हम बात करते हैं MEMP क्या है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और मास ऑफ प्रोटॉन इन द यूनिट इज़ द kg.
ई क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसका यूनिट होता है कूलम, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जिसकी हमारी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगर हम इन सारी यूनिट्स को रखते हैं तो हमारे पास जो डायमेंशन इसकी अकॉर्डिंग आती है वो डायमेंशन होती है m0 l0 t0। इस वैल्यू के हिसाब से जो डायमेंशन लेस, ये जो हमारा के ई स्क्वायर अपन जी एम पी एम पी है, ये क्या है? डायमेंशन लेस क्वान्टिटी हो गई, डायमेंशन लेस रेशो हो गया। अब इस रेशोज़ में जो सारी वैल्यूज़ हैं, जैसे ई की वैल्यू हमारी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11, और इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31, और प्रोटॉन का होता है 1.66 इंटू 10⁻27 kg। इन सभी वैल्यूज़ को अगर हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमें एक नया जो रेशियो है वो मिलता है 2.3 इंटू 10⁻39। दिस इज़ द रेशियो इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, कीपिंग द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज़ द कांस्टेंट। ठीक है, यही हमारा जो है ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो कि एक एटम के लिए हम कंसीडर करें तो वो जो फोर्स होगा वो 10⁻39 टाइम्स ग्रेटर दैन द ग्रेविटेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.4 पर बात करते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटनाइज्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटनाइज्ड मीन्स द टोटल charge of a body is quantized. That means integral multiple of single electron of the charge। जो हमारा सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा उसका इंटीगर मल्टीपल करते हैं, अगर इंटीजर मल्टीपल करते हैं तो हमारा किसी भी बॉडी पर टोटल चार्ज बनेगा। दिस इज वैल्यू इज कॉल्ड क्वांटेनाइज। ठीक है, एंड द फॉर्मूला फिर क्वांटेनाइज इज Q इक्वल टू NE। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द टॉपिक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर बी सेक्शन में पूछ रहा है व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटनाइजेशन इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद द इलेक्ट्रॉन विद द माइक्रोस्कोपिक एंड द लार्ज स्केल ऑफ द चार्जेस। एक्चुअल में होता क्या है कि अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल या लार्ज स्केल चार्ज की बात करते हैं, द चार्ज यूज्ड आर ह्यूज compared to the magnitude of the electric charge, and the quantization electric charge is of the no use microscopic scale। जब माइक्रोस्कोपिक स्केल पर अगर हम इसको स्टडी करते हैं तो हमारा जो क्वांटनाइजेशन रूल है वो उसको क्या होता है? ब्रेक हो जाता है। देयर फोर द इग्नोर इट, इसको हम इग्नोर भी कर देते हैं। कंसीडर्ड एज द इलेक्ट्रिक चार्ज इज द कंटिन्यूस, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फ्लो होता है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में और कॉन्टीन्यूस होता है, इसलिए माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्वांटनाइज थ्योरी को हम जो है इग्नोर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा, एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर कि अगर व्हेन अ ग्लास रोड रब्ड विद सिल्क क्लॉथ चार्जेस अपीयर ऑन बोथ एंड अ सिमिलर फिनोमेना इज ऑब्जर्व विद द मैनी अदर पेयर्स ऑफ द बॉडी, एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन कंसिडर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट इज़ वेरी क्लियर। एक्चुअल में जब हम रबिंग इज द प्रोसेस, रबिंग और फ्रिक्शन, वी कैन ऑल्सो से दैट हियर फ्रिक्शन, रबिंग एंड फ्रिक्शन विद द डिसिमिलर quantities and matters. In this friction, some of the electrons of the one body is transferred to the another body. Which body is gained the electron is called negative, and which body lost the electron is called positive. And the law of conservation of energy is here proof by when we touch again both bodies, the charge will be shows here zero। क्या होगा? चार्ज जो होगा जीरो हो जाएगा। अगर आप रबिंग करके कुछ इलेक्ट्रॉन्स को किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, ऐसा हो जाता है, तो अगेन उन दो बॉडी को अगर हम टच करते हैं तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो क्या होगा? अगेन जो है एटम पर जीरो हो जाएगा। इसलिए, और दूसरी बात ये भी कि नेचुरली अगर हम देखें कोई आयरन हो या कॉपर हो, ये सब मेटल होने के बावजूद भी हम इन्हें छू सकते हैं, लेकिन अगर ये दोनों मेटल या जो हमारा कॉपर या आयरन है, अगर इसको हम इलेक्ट्रीफाइड कर दें, इन पर थोड़ा चार्ज ला दें, तो इनको छूने से हमें अट्रैक्शन और रिपल्सन का जो है फीलिंग आ जाएगी। तो सिंपली इसका मतलब यही है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब कि अगर आप चार्ज को ना तो प्रोड्यूस कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। 1.6 पर अगर हम क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं, यहाँ पर 4 पॉइंट्स चार्जेस हैं जो कि एक स्क्वायर के सभी कॉर्नर्स पे प्लेस हैं। 1 माइक्रोकूलम का चार्ज प्लेस किया गया है, और आपका जो 10 सेंटीमीटर है उनका साइड दिया गया है, 10 सेंटीमीटर साइड पे ये प्लेस हैं।
अगर हम यहाँ पर देखें तो जो कि हमारा +2 माइक्रोकुलाम इस पर, +2 माइक्रोकुलाम इस पर, -5 माइक्रोकुलाम इस पर, और डायगोनली जो ये जो आपको दिख रहे हैं डायगोनली चार्ज आमने सामने है, डायगोनली चार्ज आमने सामने है, लेकिन चार्ज क्या है, सिमिलर है। यहाँ पर भी चार्ज सिमिलर है। अगर हम इस बात को करते हैं कि सेंटर पे अगर हम कोई चार्ज को प्लेस करते हैं 1 माइक्रोकुलाम के, तो सेंटर पर अगर हम कोई चार्ज प्लेस करते हैं तो हमारा सेंटर पर कितना फोर्स होगा। एक्चुअली देखिए ये जो हमारी ये जो डायगोनल का बाइसेक्टर पॉइंट बन रहा है, यानी कि ए ओ बी ओ सी एंड ओ डी, दीज आर इक्वल। ठीक है, जो मैग्नीट्यूड में क्या होंगी, ये सारी डिस्टेंसेस इक्वल होंगी 1 माइक्रोकुलाम से। अब इसका जो हमारा प्लस का 1 माइक्रोकुलाम से हमारा जो चार्ज है 1 माइक्रोकुलाम, प्लस का प्लस से क्या होगा, रिपल्सन हो जाएगा। दैट मीन्स जो फोर्स होगी हमारी, ये जो फोर्स होगी, ये जो फोर्स होगी रिपल्सन हो जाएगी। यानी इस पॉइंट पर एक रिपल्सन होगा, इस पॉइंट पर एक रिपल्सन होगा, इस पॉइंट पर भी एक रिपल्सन होगा, इस पर भी। तो रिपल्सिव फोर्स और डिस्टेंसेस क्या हो जाएंगी, सेम। तो रिपल्सिव फोर्स और डिस्टेंसेस सेम होने की वजह से हमारा जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, सॉरी टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से जो डिस्टेंस सेम है और चार्ज भी सेम है, इसलिए हमारा टोटल जो फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा, ज़ीरो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1.7 पर डिस्कस करते हैं। एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स आर कंटिन्यूस कर्व, दैट इज द फील्ड लाइन कैन नॉट बी द सडनली ब्रेक, वाई नॉट, एक्सप्लेन द टू लाइन्स आर नॉट इन। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जब हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की थी तो हमने आपको बताया था कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है ये कंटिन्यूसली कर्व बनाएंगी। ठीक है, बिकॉज ऑफ द अनदर जो अनदर चार्ज होगा एक्सपीरियंसेस एक फोर्स इज कंटिन्यूसली, वो जो अनदर चार्ज उस फील्ड में एंटर करेगा वो कंटिन्यूस एक फोर्स को फील करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा कर्व है कंटिन्यूस होगा, कहीं भी ब्रेक नहीं होगा। अगर सडनली कोई लाइन ब्रेक होती है और फिर वो दोबारा स्टार्ट हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज दिस हियर, if two lines are not intersect to each other, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। इसका रीज़न ये है कि अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उस पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की टू डायरेक्शन जो है शो होंगी, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की टू डायरेक्शन इज़ नॉट पॉसिबल एट द सेम पॉइंट। ठीक है, तो ये 7 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। इन 7 क्वेश्चंस को आप जो है नोट कर लेंगे और इससे आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिस्कस करूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।